10 people. All set, Preeti ji, please. We can begin. Welcome everyone to a very special evening of poetry with brilliant award-winning Hindi poet Anamika, who's here with us today. On behalf of Maja House and the audience that is here and our team, I'd like to congratulate you, Anamika, for the 2 recent awards that you've added to your considerable kitty. The Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Poetry Award that was presented to you at the Jaipur Literature Festival just last month. And then a day ago, you received the Sahitya Academy Hindi Award for 2020. Anamika is Associate Professor, Department of English at the University of Delhi. She's an accomplished translator and a novelist as well. She's also a trained Kathak dancer, and she holds a doctorate in both English and Hindi. So those are some of the things that I've said about Anamika. Her actual bio reads like it's 4 pages long, so I don't think I'm going to do that right now. Our evening session is a mix of her own reading, and where she's going to read from her own books. And then we have some of our own Maja House members who also write poetry. And we've invited them here today to share their work with us. Before I hand over to Gurpratap Khera and Arinda Chamak, who are our masters of the ceremonies this evening, I'd like to introduce Professor Sarabjot Singh Bahal and his powerful Rang De Basanti Chuniya. This is as much an ode to the women farmers of Punjab who gathered in strength at the borders of Delhi to protest the farm laws, as it is to the spirit of Punjab, to its resilience, to its history of standing tall in the face of injustice and brutality down the ages. It's a tradition that has sprouted in the soil of this state, and it has gained strength with every passing decade. Professor Bahal is Dean Academic Affairs at GNDU. He's an architect and a mentor and a teacher, but he has the soul of a poet, and his forthright, powerful words speak to our hearts and minds in equal measure. I'm going to hand over to you, Gurpratap, and we will open with Sarabjot's powerful words this evening. Welcome, sir. और हम यहाँ पे सारे सुन तो चुके हैं, आपकी जो पोएम है बहुत मशहूर हो रही है, और एक बार फिर मैंने आपके मुंह से अभी तक नहीं सुनी, मैंने इसको गाया ही सुना है, तो आप जरा इसको सुनाएंगे हमें? जी जी जरूर, and thank you for this opportunity in such august company of Anamika ji, and I begin with congratulating Anamika ji for this Sahitya Academy Award, which is from among the highest awards that this nation gives it to its accomplished writers. Now, the inspiration of this poem, as Preeti ji was mentioning, that this farmers' protest movement has been going on for quite some time. But most of the poems, most of the songs, a lot of literature has been created during this farmers' movement. A lot of songs have, in fact, someone was telling me there are almost 700 songs that have been produced in the last 6 months in the farmers' protest movement. But I felt, and I was made to realize, that the role of women, has been quite undermined in every revolution across the history, and also in the farmers' protest movement. Women who always face the first brunt of any revolution, again, their role was not coming to the foreground. So I, taking inspiration from Ram Prasad Bismil's, and it was Basant, and on 8th March, again, women were supposed to gather at Tikri border and Ghazipur border. But I didn't have that in my mind when I wrote about it a couple of days before that. And Ram Prasad Bismil, who wrote this song, Mera Rang De Basanti Chola, and I just changed that Chola to Chuniya in order to pay ode to the revolutionary spirit of the women
folk of not only Punjab, but also across India. So here it goes. It is a song, so I'll narrate it as a poem here. Basanti Chuniya. Rang de basanti chuniya, ni maaye mainu rang de basanti chuniya. Kund chuk ke gulami sari thuk ke, मैं रवा ना लुकाई कोलों लुक के, देन हुंदी ना सलामी चुक चुक के, जावे तुरया ना मैथो रुक रुक के, नवी मैं भी ते नरोई मेरी दुनिया, मैनू रंग दे बसंती चुनिया, बाबला रंग दे बसंती चुनिया. Excellent, sir. Thank you, Anamika ji. डके भन के ते नके सारे मोड़ के, इस संग वाली संगली नू तोड़ के, मैं रूड़ियां नू रावी विच रोड़ के, तुरा मोढे नाल मोढा तेरे जोड़ के, तू कल्ला नहीं मैं भी हुण हुन्नी आ. Very good. मैनू रंग दे बसंती चुनिया, वे माइया मैनू रंग दे बसंती चुनिया. आस रखी नहीं बनेरे बैठे कामां ते, बरूहां टप के ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਖੰਭ ਉਗਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਉਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਨੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁਨੀਆਂ, ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁਨੀਆਂ. लास्ट बंद है इस कविता का. तू मोर्चे दा मोर ते मैं मोर्चे दी मोरनी, तू मोर्चे दा मोर ते मैं मोर्चे दी मोरनी, जचे सिंह नाल तुरदी किन्नी सोहनी कोरनी. झली जांदी नहीं ओ साडी टौर वाली तोर नहीं, शायद जोर वाला चलना ते हुण कोई जोर नहीं, बाजों साडे हुंदियां ने सत्थां सुन्नियां, मैनू रंग दे बसंती चुनिया, वे साइया मैनू रंग दे बसंती चुनिया. How very nice. Is the highest model of intertextual dialogue between two kinds of texts. It's very inspirational, and the way you maintain the rhythm of going out and taking a step out and then establishing a wider dialogue. It's very nice. It's very moving. Thank you so much. Thank you, Anamika ji. And coming from you, it is a big compliment. No. I would take it with big heart. Thank you so much. अनामिका जी, माझा उसकी टीम से मैं आपका स्वागत करता हूँ. जी. और आपकी जो लेटेस्ट उपलब्धि है, आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है हिंदी के लिए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं. और हमारी सबको साझा है ये बधाई. हम सब जब दूसरी लैंग्वेजेस से भी, अभी मैं इनको सुनती हुई भी सोच रही थी कि सभी हमारी लैंग्वेज आपकी पंजाब की 5 नदियों की तरह मिलके चलती हैं, एक ही जज्बा लेके चलती हैं, और कितनी आसानी से हम एक दूसरे को समझ जाते हैं. बहुत अच्छा. ये हम सबका साझा है, आपका साझा चूल्हा वाला संकल्प है. शुक्रिया. और मैं माझा उसकी तरफ से और बाकी हमारे जो पार्टिसिपेटिंग शायर हैं आज, उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ. जी. हमने अभी बात की आपकी लेटेस्ट उपलब्धि की कि आपको साहित्य अकेडमी मिला है, पर अगर पीछे को जाएं तो शुरुआत से अगर बात करें आपके सफर की, तो वो सबके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपके पिताजी भी बहुत मशहूर शायर थे. जी. अभी इनकी कविताएं सुनते हुए मुझे वही याद आ रहा था. वो भी इसी तरह से गीत में लिखते थे, और ये गीत जो है वो बिना स्केलेटर के हार्ट्स पे चला जाता था, सीधा दिल से दिल तक. जी. तो कुछ बताएंगे अपने शुरुआती दिनों के बारे में, अपनी परवरिश के बारे में, आपके घर का माहौल कैसा था? किताबें थी और हंसी थी और गपशप का पूरा एक जत्था. हम भी हमारे भारत में पूरे सभी कस्बों में खासकर पूरा मोहल्ला ही एक घर होता है, बल्कि पूरा शहर एक घर होता है, एक जॉइंट फैमिली होता है. सबका एक दूसरे के घर आना जाना होता है, और एक अदृश्य अलाव सी जली होती है, उसको घेर के सब बैठे रहते हैं. और किताबें भी हो अगर घर में, तो अक्रॉस सेंचुरीज हम
उन लोगों से भी गपशप कर सकते हैं जो अब नहीं है, किताबों में अपने पैगाम छोड़ गए हैं। तो पापा की एक बहुत अच्छी आदत थी कि रोज रात को वो किस्से कहानियां सुनाते थे और वो किताबें पढ़ के सुनाते थे। तो कोई पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से हमारे घर आती थी मोबाइल वैन्स में, और पेंगुइन के समय, उस समय बाइलिंगुअल एडिशंस वर्ल्ड लिटरेचर का जारी करता था। वर्ल्ड लिटरेचर का परवान तुरंत कॉन्सेप्ट पूरा परवान चढ़ रहा था, और हमारी इंडियन लैंग्वेज की पोइट्री भी, इंडियन लिटरेचर और दूसरे तरह के जर्नल्स में साथ घर आ रही थी। और हम सब एक नई तरह की लड़की बनाने के, हम सब जो क्रिएटिव फादर्स थे हम लोगों के, वो चाहते थे कि जो लड़कियां बने अब एक नई तरह की लड़कियां बने। तो वो हम लोगों की परवरिश में भी ये चाहते थे कि एक नया समाज बनाने में एक ऐसी लड़की सामने आए जो अपने ट्रेडिशन की बैटरी भी चार्ज करती रहे और नई तरह की दुनिया भी बनाती रहे। क्योंकि उनको लगता था कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इसको भी अगर हम ऐसी बात दे देंगे जो उन लोगों को बियर अप करती रहेगी नए आदर्शों से, तो उन्हें उस हिसाब से शायद वो हमें चीज सींच रहे थे। अंताक्षरियां खूब खेलते थे हमसे कविताओं की, और हम ही से नहीं, मोहल्ले की जितनी लड़कियां होती थी सबको बिठा के खेलते थे वो। तो ये हमारी कविता और कहानी की जो गपशप होती थी, इसने मुझे बहुत, एक तो हमारी जो कम्युनिटी लाइफ है इतनी रिच, भारत की सबसे बड़ी थाती है हम लोग की कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन हमारा। ये हम अकेले नहीं है, हम हमारे साथ पूरा एक जत्था है, हम सब साथ है। ये जज्बा बहुत था जिससे हम सबके दुख सुख से एकाकार हो पाते थे। तो हालांकि मैं घर में अकेली ही थी, भाई मेरे हॉस्टल में रहते थे, तो मुझे कभी लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। लगता था दुनिया भर की औरतें, दुनिया भर के जो दुखी लोग हैं हमारे घर के ही सदस्य हैं, और जो भी जहाँ लिख रहा है कविता वो हमारे घर का ही है, और उसके बहाने हम दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे कविता की आंख से। तो यही है जी। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के तो मैं अपने क्वेश्चन में भूल ही गया कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन भी करना था। सच में पंजाबी में एक बड़ी खूबसूरत टर्म है जिसको कहते हैं विस्माद। मतलब आप अंदर से जब भाव भोर हो जाते हैं, उसमें रच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, जहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिले कि आपके इर्द गिर्द के आपको लगे कि वो अलग अलग घर नहीं है लेकिन अलग अलग कमरे हैं, लेकिन घर एक ही है, शहर एक ही है, परिवार बिल्कुल ऐसा ही लगता था। तो इन सब के दौरान आपकी कोई ऐसी अनुभूति, कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस जो जिसने आपको अंदर से झंझोड़ा हो, जैसे जिसने कोई आपको अंदर से बहुत पकड़ लिया हो और फिर मजबूर किया हो कि आप उसको कविता के माध्यम से, अपनी पोम के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करें? मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहती थी। हमारे यहाँ बहुत मुजफ्फरपुर जो हमारा शहर था, उसमें पंजाब के विस्थापन के बाद बहुत से लोग आए थे सेटल करने। ऐसे बूढ़े सरदार जी लोग भी बहुत थे जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, और वो लोग बहुत दमखम से अपना जो भी उनका व्यवसाय था वो चलाते थे और ऐसे मिलजुल के रहते थे। तो एक हमारे हरभजन सिंह, जब मेरे फादर के बहुत करीबी दोस्त थे, वो चेकोस्लोवाकिया में दोनों साथ थे, जब मैंने उनकी तस्वीर पापा के पास देखी तो मुझे याद आया कि इनकी तस्वीर तो बिल्कुल, मुझे पीछे हमारे एक सरदार जी की बहुत ही, वो सूफी थे, पूरे के पूरे सूफी थे। पंजाब का जो सूफियाना ट्रेडिशन है वो उसके एकदम ही साकार रूप थे। और वो उनकी एक छोटी सी गुमटी थी, उसमें वो छोटे छोटे बोयाम समझते शीशे के जार्स लेके बैठा करते थे, और जिन बच्चों के पास खरीदने के पैसे नहीं होते थे वो मुफ्त में उनको टॉफियां बांट देते थे। तो हमारे बचपन में ना चौक एक तरह की खास तरह की लेमन जूस मिलती थी जिसको चांद की तरह की शक्ल की थी वो लेमन जूस। तो उस पे हमने वो उनको चांद बांटता हुआ देखा। हमने कहा, मुझे लगता था कि जो लोग खरीद नहीं पाते थे वो सरदार जी उनको भी चांद बांट देते थे। और हम नई नई साइकिलें चलाना सीख रहे थे, हम बार बार गिरते थे, तो हमारे गिरने पर उन्होंने एक इतना सुंदर टप्पा हमें सुनाया था, मुझे वो बहुत मूविंग। उनकी एक माँ थी,
वो खुद भी बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी एक माँ थी। वो दिन भर, उनके 2 बच्चे होंगे, तो एक शायद दिल्ली में रहते थे उन दिनों और एक दिन वो पटना रहते थे। तो जब वो पटना आती थी, विस्थापन ने क्या कर दिया था ये मैंने पहली बार उनको देखा। जब वो पटना आती थी तो कहती थी मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी। और उसके बाद जब वो दिल्ली आती थी तो कहती थी मैं पटना जाऊंगी, मैं पटना। उनका दिल फट गया था हिंदुस्तान के कलेजे की तरह, और उन्हें कहीं चैन नहीं आता था। और उनके बच्चे दोनों 2 तरफ बंट गए थे, वो उनको संभालते फिरते थे। फिर जो उन्होंने टप्पे मुझे सुनाए थे, वो मुझे बहुत देर तक अंदर तक झकझोरते रहे थे। तो उनकी याद में मैं एक छोटी सी पोएम जो मैंने लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये मेरे बचपन, और ये वो ही दिन थे जब बांग्लादेश से हमारे वो ब्लैकआउट के दिन होते थे। रह के ना बिजली काट दी जाती थी, कहा जाता था कि कभी भी बम गिर सकता है, तो कैसे भी हो तुम लोग अपने टेबल के नीचे घुस जाना। डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें पढ़ाई जाती थी उन दिनों। तो हम ऐसे ही, जब हमारी बत्ती गुल हो जाती थी तो हम ना उनके पास बैठ जाते थे और वो हमें ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे। और जब हम साइकिल चलाते हुए गिर जाते थे तो हमको वो कैसे अच्छे से उठाते थे, ये मैं बहुत कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि पंजाब में आपका ये लोकेटेड है तो मैं उनको ट्रिब्यूट देती हूँ और एक छोटी सी पोएम सुनाती हूँ जो मुझे बचपन के उस घटना से बहुत जोर से जुड़ी हुई है, बहुत गहरे जुड़ी हुई है। इसका मतलब, इसका शीर्षक है साइकिल। बाबा निहाल सिंह जालंधर वाले सुनाते थे विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटिश फौज के किस्से। वैसे भी बूढ़े सिख की सफेद दाढ़ी में 7 समुंदर की झाग भरी होती है, पर उनकी झुर्रियों में भी था दरक गई धरती का ठंडा परिताप। किसी बात पर जो कभी नहीं खोता है आपा, वह ठंडा परिताप उन्हें एक अच्छा किस्सागो बनाता था। अदृश्य तकली लिए हाथ में काटते रहते थे बातों के लच्छे। घर के पीछे उनकी गुमटी थी, शीशे के बड़े बोयामों में नारंगी चांद बेचते थे वे। क्या बात। बहुत। चांद चुभलाते हुए हम निकल जाते अपनी पहली साइकिल पर कहीं से कहीं। जिस दिन मैं पहली दफा साइकिल से गिरी, फूटे हुए घुटनों पर भेंगरिया के रस की पट्टी लगाई उन्होंने और 4 चांद थमाकर मुट्ठी में बोले, आजादी की ओर बदहवास दौड़ी चली जाती पहली सवारी। यह साइकिल एक मुबारक टप्पा है कुड़िए, टप्पे में टांग टूटती है तो टूटे, तू घबराना मत। ऐसे ये मुझे उनकी, जब भी मैं गिरती हूँ जिंदगी में, कोई एक अदृश्य साइकिल तो हम हमेशा चलाते ही रहते हैं पहली बार, और जब भी मैं गिरती हूँ तो कहते हैं कि जैसे तान गाते गाते टूट जाती है तो घबराते नहीं है, फिर से उठाते हैं। तो उसी तरह वो मुझे लगता है कि जब भी मैं गिरती हूँ मुंह के बल औंधे, तो मुझे वो बूढ़े सरदार जी, निहाल सिंह जी का ये थमाया हुआ आप्त वाक्य मुझे एकदम याद आ जाता है कि कैसे वो बिजली जाती थी और कैसे वो बच्चे उनको घेर के बैठ जाते थे, कैसी कैसी कहानियां वो सुनाते थे विश्व युद्ध के समय के, विस्थापन के समय की। मतलब वो एक बहुत गहरी याद है मेरे मन में। और उनका वो मतलब चांद के रंग की, नारंगी चांद के रंग का सपना थमाना, और एक इतना, वो मुझे आज तक वो मेरे सपनों में वो नारंगी चांद चमकता है जब अंधेरे घिर आते हैं मेरे चारों तरफ। तो बचपन में कुछ किरदार ऐसे मिलते हैं हमें जो हमारी कल्पना के स्थायी नागरिक हो जाते हैं और पूरे भारत को एक करने में
ये बहुत बड़ा जज्बा है कि हम बहुत अच्छी गपशप कर लेते हैं। भारत के किसी भी प्रांत के लोग दिल खोल के बात कर लेते हैं और दिल खोल करके किस्से सुना लेते हैं। अनजान लोग भी अगर बस में बैठे हो ना, ट्रेन में बैठे हो, एकदम से बात करने लगते हैं। ये कभी भी बाहर नहीं होता। और इस तरह से कि जो भी हमारे घर में है हम उसको खिला दें, हम उस पे हम पंखा हिल के उनको दिल खोल के बात करें, बहुत प्यार करें, ये शायद हमारी मिट्टी की बहुत बड़ी खासियत है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं कहीं के भी हो, वो हमें जज्बा जगाए रखे ताकि कोई हमें बांट न सके। अनामिका जी, मैं आपकी इस नज़म पे मेरी आंखें भर आई हैं, इस कविता से जिसका उन्वान आपने, शीर्षक आपने साइकिल रखा है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शायद हम सब अपने साथ जिंदगी में कोरिलेट कर सकते हैं। हम सब में से किसी ने सिवाय आपके शायद निहाल सिंह जी को नहीं देखा, लेकिन आपकी इस कविता के बाद मुझे लगता है कि वो निहाल सिंह हम सबके थे और हम सब उनको महसूस कर सकते हैं। और आपने क्या खूब अच्छी मंजर कशी की है इस पूरी कविता में कि वहाँ वो शीशे के बयान भी हमें नजर आने हैं, और वो नौरंगी चांद जो आज आपने सबको बांट लिया वो उनके हाथों से। मुझे लगता है कि कितना अब जिंदगी में आपने कोई भी भी खाई अगर होगी औंधे ना, मुंह वो गिरा, हमारे अब नहीं मिलते वो नारंगी चांद, लेकिन ना हम मिले, लोग के बचपन में मिलते थे। वो ना भी मिले तो आज शायद लगता है कि आपने हमारे हाथों में वो थमा दिए हैं। और हम में से कभी भी कोई औंधे मुंह गिरा तो ये आपकी कविता और उस कविता की जो सोल निहाल सिंह जी और नौरंगी जी चांद, वो दोबारा हमें उठने में वो बहुत मदद करेगा। सो गुरप्रताप जी, संजय हैज आल्सो जॉइंड अस नाउ, सो ओवर टू यू गुरप्रताप। जैसे कि चमक साहब कह रहे थे नामिका जी की निहाल सिंह को तो सिर्फ आप ही नहीं देखा होगा, पर नारंगी चांद जो है वो हमने भी चखा हुआ है बचपन में, और वो ये शीशे के हमारा दरवाजे साझा में है होता सब था। कुछ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मैंने कुछ सवाल आपसे बाद में पूछा था, पर अभी बात साइकिल की भी हो गई है, नारंगी चांद भी आ गया है, तो वो मैं क्वेश्चन जरा ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो ये जी कि आमतौर पे जब हम शायरी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ग्रैंड और लॉफ्टी इमेजेस आते हैं कि भारी भरकम होनी चाहिए, ऐसी सेंटेंसेस, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। पर आपकी मैंने जब कविताएं सुनी हैं, और ये भी नारंगी चांद एक और सुनी मैंने, तो आपकी कविताओं में बहुत सरलता है, और आप रोजमर्रा के जो घर के सामान होता है, आप उसको भी कविता में लेके आती हैं। अभी आपने साइकिल की बात की, मर्तबान भी आ गए, नारंगी चांद भी आ गए, और मैंने एक और कविता सुनी थी जिसमें कैंची का जिक्र भी था, झाड़ू भी था, टेबल भी थे। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में कविता ढूंढनी, ये आपने कहाँ से सीखा होना? ये तो हम सबके मेरे ख्याल से हमारा जो भारतीय दर्शन है इसमें ही है ना, कि माइक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म में ब्रह्म अंदर जो है और बाहर जो है उसमें कहीं एक आपसदारी है, जिसको जब हम इगैलिटेरियन दर्शन की बात करते हैं, समतावादी दर्शन की बात करते हैं, तो वो शिल्प में भी परिवर्तित होना चाहिए। और फिर मैं पंजाब की धरती से एक शब्द उठाकर कहूँ तो झप्पी लगा लेनी चाहिए। कोई भी अच्छी कविता हम सब जानते हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, एक अच्छी कविता वो होती है जिसमें जो भी उसका तथ्य है, जो उसका एथिक्स है, जो एथिकल अटरेंस है, वो उसके थीम में या उसके एस्थेटिक्स में वो परावर्तित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमारा जो हम एक चटाई सी बिछाना चाहते हैं, हम सारी ऊंच नीच खत्म करना चाहते हैं अपने समाज में, धर्मों के बीच, वर्गों के बीच, वर्णों के बीच, लिंगों के बीच। तो हम ये जो हमारा दर्शन है, ये थीमेटिक कंटेंट है, ये हमारा एस्थेटिक कंटेंट में या इनके इसके शिल्प में अगर ये परावर्तित नहीं होगा तो कविता कहीं अधूरी रह जाएगी। तो हमारा मेटाफर जो है वो इसी फिलॉसफी पर तो चलता है ना, कि झप्पी लगाते हैं, जक्सटापोजिशन होती है पर्सनल और पॉलिटिकल की, कॉस्मिक की और कॉमन प्लेस की, सेक्रेड की और प्रोफेन की, इस दुनिया और उस दुनिया की एक झप्पी सी लग जाती है मेटाफर में। तो जब जिस कविता में झप्पी लग जाए तो वो झप्पी कैसे, आपका कोई पुराना दोस्त मिलता है और आप दौड़ के उसके गले लग जाते हैं, ऐसे ही कॉस्मिक और कॉमन प्लेस अगर गले ना लगे तो हम कैसे फिर हम सपना भी देखेंगे कैसे समाज का जहां कोई ऊंच नीच नहीं हो। मुझे लगता है औरतों की जो दुनिया है
वो ऐसी ही दुनिया ही है कि उसमें झप्पी लगनी होती है, उसमें समझिए कि दो धरातल के एक होने ही होते, एक चटाई बिछनी ही होती है। जो जैसे हम चाहते हैं कि गरीब अमीर के बीच में या जातियों के बीच में या लिंगों के बीच में या धर्मों के बीच में ऊंच नीच खत्म हो जाए, एक चटाई पर सब बैठे, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे मेटाफर्स में भी ये दोनों संसार गुथ जाएं। हम न छोटी सी गुत्थ से गूंथ दे सबको एक दूसरे की तरह, ताना बाना की तरह, तभी हमारा पूरा जो हमारा भीतर का एक जज्बा है सामने आएगा। कि औरतों में खास तरह से होता है, हम मल्टीप्लगिंग करती रहती हैं, हमने ट्रेडिशनल रोल्स भी नहीं छोड़े, हम नई तरह की दुनिया भी बसाना चाहती हैं, नए रोल्स भी हमने ले लिए हैं। तो हमारे जो संसार में इंक्लूसिव होता है, सब कुछ हमारे साथ एक साथ ही बजता रहता है हमारे भीतर। और वो मतलब इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें, और दूसरा कि हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों से, नदियों से, पहाड़ों से गपशप करने की पूरी परंपरा है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जो जीवित है वो तो उसमें रस है ही, प्राण है ही, जो जीवित नहीं है उसमें भी प्राण है, वो भी कुछ कह रहा है। हमारे जितने भी किस्से हैं उसमें वो भी बोलते हैं जिसमें प्राण नहीं है। तो हम सबको तो लगता है कि वो सब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी भी वाणी हम में आ जाती है। और माँ की आंख से देखने पर आप अपनी अपनी माओ को याद करें तो माँ सबकी बातें सुनती है। मैं यहाँ पर बायोलॉजिकल मदरहुड की बात नहीं कर रही, आप में भी वो मदरहुड है। अगर आप ममता की आंख से, करुणा की आंख से देखेंगे तो सबकी आवाज, आप एक अंधे कुएं की तरह हो जाएंगे। अंधे कुएं में बहुत सारी आवाजें होती हैं, बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, और वो सब बोलने लगती हैं। आप एक एम्प्टी वेसल हो जाते हैं, आप कुछ करते ही नहीं, बस आप उनकी आवाजें आप में टहलने लगती हैं। तो यही होता है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने अहंकार से खाली, ईगो से खाली हो जाते हैं, उसके बाद जिन्हें बोलना होता है वो हमारे थ्रू बोलने लगते हैं। तो यही होता है पोइट्री में, थोड़ा सा तो मिस्टिकल इसका इंटीरियर है ही, लेकिन अगर रैशनली भी इसको एक थियराइज भी करना चाहें तो इसमें हमें यही लगता है कि आसपास की जो चीजें हैं और जो बृहत्तर ब्रह्मांड है, उन दोनों में गुफ्तगू होती ही है। और इसको अगर एक फ्लैश, कविता में क्या होता है कि एक फ्लैश में एक आपको पूरी एक झप्पी लगा लेनी होती है, इतने से स्पेस में आपको पूरा ड्रामा मंचित करना होता है, तो इसमें हो जाता है, ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जहां भी मेटाफर है वहां वो है। तो एक मेरे ही यहाँ नहीं, सबके यहाँ है, बस हम इसी ओर सजग हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हमारे परायेपन, ये जो पूरी पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग चल रही है अभी समाज में, हम उससे बरी कैसे, उनसे खाली कैसे होंगे जब हम पुल बनाना सीखेंगे, जब हम झप्पी लगाना सीखेंगे, हम जब तू मैं भूल जाएंगे। यही हम करते हैं। कविता जो भी लिखता है, मैं ही नहीं, कोई भी जो लिखता है, जो भी कुछ भी रचता है, उसके मन में यही रहता है कि एक सबलिमिनल ब्रिज सा बन जाए, जो भी हमारी बाइनरीज है उनके बीच में। मुझे नहीं मालूम कि अभी गुरुप्रताप जी ने कुछ कहना, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहें, मैं जरूर कहना चाहूंगा इस यहाँ पे कि आपकी रचनाओं में से मुझे फेमिनिज्म ज्यादा नजर आता था, लेकिन अब उसमें से जो सूफिज्म है वो ज्यादा नजर आ रहा है। और मुझे एक बात और बड़ी खूबसूरत आपकी बातों में से निकली कि जो नानक कहते हैं वही आप कह रहे हैं, मतलब उसमें कहीं पे भी कोई भेद नहीं है, कहीं कोई उसमें उसको अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। और आपने सही कहा कि हर मर्द में भी एक मदरहुड है। वो बिल्कुल है, आप जैसे लोगों आप में उस तो करुणा है। से देखते हैं तो वो दुनिया आपको किसी और एंगल से ही नजर आती पराई लग ही नहीं सकती, पराई लग ही नहीं सकती। गुरुप्रताप जी जी। अनामिका जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक और पोएम पढ़ें। मैंने उसका शीर्षक तो मुझे मालूम नहीं, पर उसमें झाड़ू जरूर आया था और कैंची भी आई थी। तो अगर आपके पास इस वक्त वो हैंडी है तो वो सुनाएंगे जरा। मैं देखती हूँ कहीं मुझे याद हो, मैं जी देखती हूँ जी अगर याद पड़ गई तो। जी। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। ओए हो अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है
तो चलती है कैंची सुई, गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। क्या बात, बहुत बहुत क्या खूब, बहुत खूब, वाह। खूबसूरत, वाह। अनामिका जी, ये मैंने आपकी पहले भी ये कविता पढ़ी भी है और उसको सुना भी है, पर आपके सामने बैठ के इसको सुनने में बहुत लुत्फ आया। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। और आपसे बातें आगे कंटिन्यू करेंगे, पर मैं अभी अपने जो माजा उसके मेंबर्स हैं जो अपनी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको एक एक करके बुलाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हरसिमरन जी हैं, जो मेरे ख्याल चंडीगढ़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरसिमरन जी। Hello Ji, good evening everyone. Good evening, good evening. Thank you very much for this opportunity. I've been a listener for quite long, but this is the first opportunity to be able to present. I think it's a great forum. My best wishes. हरसिमरन जी, आपका वीडियो ऑन है? Yes, my video is on. मेरे को आप नजर नहीं आ रहे, मैंने नहीं, इसलिए गुलशन, अपना गुरप्रताप जी नजर आ रहे नहीं। We can see him. I'm just going to add a spotlight to him. Now you can see him. Okay, all right. Yeah. All So, right. Just to pick up the threads from Anamika ji, she spoke very briefly about the partition. Well, my father, when after partition decided to settle in Chandigarh, and he was fond of Urdu poetry, and I would often hear him express his feelings through Urdu poetry. And I remember a few snatches of it. I can't remember the author or the poet. One of them was फलक को जिद हमी पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद यहीं आशियां बनाने की। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। He made Chandigarh his home. He built a house and then he moved on. Such is life. And so I inherited the city, particularly after I retired from the army about some years back. So my poem, if I can call it a poem, is about Chandigarh, and it's called My City Fringe. I will only read one poem. I will not punish you with more. So this is how it goes. My city of dreams is not for you, and this much I must say. When I in many splendor dwell, and you in hovels stay. Corbusier planned a city that, unfettered from the past, would welcome all with open hand, all faiths, all creeds, all castes. Bedecked upon a burnished throne, mid forest, hills, and dale, there are gardens, lakes, and homes for some there are cakes and ale. But when you're done with work and leisure, take your time off clubs and pleasure, wander to the city fringe. Perhaps your heart may even cringe to see a people live in shadows, begrimed, unkempt, bereft of food. Be warned, don't lose your poetic mood. This city of my dreams, alas, a dream too far for many. Can mankind live their dreams in full when some have not a penny? Beset with angst and guilt we are, our joy and fun the homeless mar. I wish my town would stretch and grow, embrace the poor and wipe their woe. This dream of which I speak in rhyme, may you and God fulfill in time. Thank you. Beautiful. Thank Wow. you. Beautiful, Beautiful. beautiful, sir. May I say, Harsimran ji, being an architect, and I have done my graduation from Chandigarh College of Architecture. Wow. You have great. really, so beautifully summed up the paradox of an elitist city and the people who live on the fringe of that city, the marginalized ones. It is so beautifully sir. put. And I have always looked at it from a professional angle, but today you have so poetically, so beautifully put it across that it has become a very moving issue for all of us. Yes, Thank you. and I Thank you so think- much for sharing. Absolutely. Corbusier couldn't possibly have anticipated this difference, this disparity. Thank you very Beautiful. much. Beautiful, Thanks for the sir. opportunity. Beautiful. Very Indeed. beautiful utterance, sir. Very beautiful utterance. So, Gurpratap ji, I think probably is still missing. So, I would request Sanjoy. Sanjoy is there, and Gurpratap is back now.
जी, आपने नाम लिया, मैं आ गया। चिराग का जिन हूँ मैं। गुम जाता हूँ कभी एक कभी मैं, ओह, चिराग का जिन हूँ मैं। हमारे एक- सपने, सारे सपने पूरे करेंगे आप। अभी तो मेरे अपने भी नहीं पूरे हो रहे। कई सपने पूरे करते रह गए अलादीनों के। जी 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 जी। हमारे अगले जो पोएट हैं वो अल्फाबेटिकली चल रहे हैं हम, तो मैं मोनिका बैनर्जी को बुलाना चाहूंगा। मोनिका जी। थैंक यू गुरुप्रसाद जी। अनामिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका है आपसे रूबरू होने का। एक बार फिर से बधाई। यहाँ माझा हाउस ने कहा है कि अपना परिचय दे। मेरा कोई परिचय नहीं है, कुछ भी विशिष्टता नहीं है। और इस वक्त इस मौके पे अगर कुछ परिचय है, so it's just that I'm part of the ordinary public on the street. And just one thing that probably I have never been afraid of echoing my vulnerability. I've never been afraid to express my vulnerability. And I think poetry or putting pen to the paper is just one means of expressing that vulnerability. थोड़ा कुछ भी जो लिखती हूँ हिंदी में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि इसी भाषा, जब एक्सप्रेस करने का मौका आता है तो शायद इसी भाषा में आता है। जबकि असम के, ऊपरी असम के एक छोटे से शहर जोरहाट में जीवन के पहले 25 साल जहाँ मैंने गुजारे हैं, वहाँ से दिल्ली तक का सफर अपने आप में बहुत एक तरीके से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभूति से पूर्ण रहा। लेकिन ये जो पोएट्री है वो शायद रिलेशनशिप्स या संबंध हो, कई बार बिखरते हुए संबंधों को ही बताता है। तो एक छोटी सी कविता है, एहसास। प्रीति और संजय दा जरूर इस इमारत को पहचान पाएंगे ऐसी उम्मीद है, लेकिन पढ़ती हूँ आपके समक्ष। एहसास। बड़ा विचित्र सा संबंध है मेरा इस इमारत से, या यूं कहिए इससे लिपटे बेलों से। एक क्षण अपनेपन का एहसास कराए, दूसरे ही पल फिर अपरिचित सा लगे। ये इमारत विशिष्ट है, यहाँ देश के चुनिंदा अतिथि आते हैं। चाय की चुस्कियों पे, चिकन आला कीफ पर 130 करोड़ जनता की नब्ज टटोलते हैं। देश की राजनीति इनके नाड़ी नक्षत्र में कैद है। देश का हाले दिल ये खूब जाने हैं। नेपथ्य से तारों को छेड़ना इनका पेशा है। अपने को परम विशिष्टता ये खुद ही देते हैं। शायद इसीलिए यहाँ की हरी धूप, ऊपर से खिलते हुए सफेद फूलों के गुच्छे, कोयल के मध्यम स्वर, अलसाई शाम को साथ लेकर आती हुई पवन, अटखेलियां करता कबूतर का जोड़ा, बोगनविलिया की उलझी कतारें, सब खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन अपनी नहीं लगती। इन पे भी विशिष्टता का लबादा ओढ़ दिया गया है। छुई मुई हैं, इतनी नाजुक कि टूट जाएंगी, पर समझा गई हैं अपनेपन और बेगानेपन का एहसास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मोनिका जी, बहुत अच्छा। पर मोनिका, आपने ये क्यों कहा कि ये सिर्फ प्रीति और संजय इस इमारत को पकड़ पाएंगे? भाई आपने वो हमें संसद 130 में करोड़ से काम निकाल करते दिया, क्या? हमारे एहसास की। बहुत 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 बहुत। इस इमारत में हम मिल चुके हैं कई बार, इसीलिए मुझे लगा कि पहचान लेंगे। बहुत 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 अच्छा आपने I think this riddle needs to be solved now. Sanjay and Preeti have to tell which Imarat is it.
पार्लियामेंट? Yes, of course. उसके इमारत के जो बीम्स हैं, जो पिलर्स हैं, उनकी बात है, उसकी बेगनवेलिया की बात है, उसके अब देखिए ना, चाय और चिकन की बात है, तो फिर 130 करोड़ लोगों के दिल की बात है, और फिर उनका पेशा है, फिर और कहाँ पे हो सकता है? ये व्यापार सिर्फ वही होता है। हमने जज्बातों की मंडी खोल रखी है वहाँ। कुछ मोल लगाओ। मोनिका, आप कोई और भी पोएम पढ़ना चाहती हैं अपनी? कोई छोटी पोएम अगर आपके पास है तो? हाँ, छोटी, एक बहुत छोटी सी है। दिल्ली मेरी जान, ये शहर, ये बहुत बड़ा शहर, ये टिमटिम रोशनियों का शहर, ये मौत की नींदें सुलाता शहर, ये शहर खौफनाक है, ये मुझे डराता है, मेरे होने के एहसास को नकारता है। मैं हर रात अपने वजूद से दो चार होती हूँ, सुबह होने तक अपने टूटन और बिखरन को समेटती हूँ, पर इल्म है मुझे, हर पिछली रात मैं थोड़ा सा मरती हूँ। वाह, दिल्ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मोनिका। और अब हमारे पास जो अगले पोएट है वो कुछ ठीक नहीं थे, तो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, पर ही इज बैक नाउ। वो भी अपनी 2 कविताएं पढ़ेंगे अंग्रेजी में। परमजीत बख्शी। परमजीत, आप आ गए? परमजीत? नहीं, मुझे कहीं नजर नहीं आए। He just called me and said कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, so चलो। लेट मी जस्ट चेक। जी। नहीं, मेरे पास नहीं है। तो अगला नाम फिर आपका रूबल आपका है। परमजीत को I'll call again. रूबल? Greetings, everyone. Am I audible? जी। Yeah, very well audible. Lovely. My heartfelt greetings to everyone, the celebrated artists, the passionate hearts. My name is Rubal Tuli. I'm an educationist and a teacher. I run Tuli's the Academy and Tuli's the Kindergarten. It's a closed model of work, by which I mean we do not take crowds here. We take selective students whom we nurture and instruct artistically, tastefully, and yes, very passionately. The poem I'm going to recite today is something I wrote in school, but the ideology contained in it, I still connect with it. Today, in fact, more than ever. It's about the idea of progress in life. Do we progress to find satisfaction and joy within our own selves? Or do we progress because we are answerable to someone? Let's see how it goes. So it's in Punjabi, my mother tongue. It is Ki Hun Main Jitya. Ki Hun Main Jitya, everyone. Sari umar bas eho hi sunda raya. Jitan waliyan diyan siftan bunda raya. Ki banda sirf ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ, 40 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। क्या बात। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਮਸ਼ੱਕਤ करके बन गया मैं वड्डा अफसर, शायद गवा रहा सी खुशी भरे छोटे छोटे अफसर। पर मैनू की, मेरा तां कहना हुण सारे मन्नणगे, एक एक आदमी हुण मेरे थल्ले लगणगे। की हुण मैं जित्या? कहंदे नहीं पुत्रा, हाले विआह ते करा, होर तरक्की कर,
ते पड़ोसियां नू सड़ा। मैं चुप रहा ते कर गया बस, पर हाले भी ना मिलिया जीन दा रस। सिर्फ पूरी करदा सी होरां दियां फरमाइशां, रुला दिंदियां सी मेरियां अपनियां पैदाइशां। पर मैं फिर पूछया कि हुण मैं जितया। कहन लगे हाले बथेरी उम्र पई है, हाले तू मन ओ गल जेड़ी असी कही है। मकान नू बना बंगला, बच्चियां दा विआह करा ते ओनू भी रंग ला। जिवें उन्हां ने कहा मैं उवें करदा रहा, एक हाथ छड़ के दूजा फड़दा गया। हुण दादा नाना सब बन चुका हां, शरीर तो पहले नालों भी सुक्का हां। हुण तक उन्हां दा ना भी मिटिया, हुण मैं किनू पुछां कि हुण मैं जितया। शायद दुनिया दे विच फस के रह गया, सब कुछ दिता पर याद नहीं कि कुछ ले लिया। मैं अपना होके भी अपना नहीं सी, वधिया दे लालच विच मेरी आत्मा बही सी। वो वधिया तां हाले भी ना लभ्या, फिर तां शायद मैं हाले भी नहीं जितया। हाय मैं फिर नहीं जितया। क्या बात, थैंक बहुत यू। अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस रूबी, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अपना नहीं रह गया, बहुत अच्छा। And Rubel's dramatic enunciation, मुझे तो मजा आ जाता है सुन के। थैंक यू वेरी Thank मच। you. जी, जी अपना रंजित नहीं जी, रह जाना ये बहुत बड़ा एहसास है। अपना ही नहीं रह जाना, आदमी सबका हो जाता, अपना नहीं रह जाता। बहुत अच्छा। थैंक्स रूबल, थैंक्स। चमक साहब, कैन यू सी बख्शी नाउ, परमजीत बख्शी? लेट मी सी, लेट मी सी। नहीं, आई No. टेक्स्टेड हिम आल्सो। No. चलो फिर मैं सबा को बुलाता हूँ। सबा, आर यू हियर? सबा फातिमा जी, सबा was here. Yes. जी। Yeah, I'm here. Yeah, good evening to all the members of Maja House. This is Sabah Fatima. And hello, Anamika ma'am. Congratulations hello for the Sabah. big win. Hello. Congratulations for the big win. Thank you. I'm from Kolkata, but right now I'm living in Sikkim. And at first I was quite nervous to present my piece of poetry before all of you, but मुझे लगा कल मैं कॉल कर मैसेज करूँ गुरु प्रताप जी को और बोलूँ कि मैं नर्वस हूँ, इतने एक्सपर्ट राइटर्स के बीच में मैं क्या अपना प्रेजेंट कर पाऊंगी। बट आप जिस अंदाज में आप बात करते हैं ऐसा लगता है कि घर का ही कोई है। तो इसी बात यही से हमारा अडॉप्टेड फैमिली है हमारी। मेरी जो पोएम है उसका थीम ये इसको 4000 सुनिंग में भेजने को सकते हैं। मुझे लगता है सबा आपका कुछ इंटरनेट का कुछ इशू है। सबा, मेरा थीम है ये एक फादर और के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सन के तरफ से एक फादर के लिए ये पोएम प्रेजेंट करता है। हेलो सबा, ऑडिबल? सबा मुझे लगता है कि आपका इंटरनेट का कुछ सबा। Am I audible? हेलो या आपकी आवाज आ रही है, आप अपना वीडियो ऑफ करके बात करें तो मुझे लगता है आपकी बैंडविड्थ अच्छी रहेगी। हाँ, ओके, अभी ऑडिबल है? जी। ओके, तो मैं अपना पोएम स्टार्ट करती हूँ। ये एक फादर के लिए एक रिकंसिलिएशन का सबा, मुझे अभी भी लग रहा है कि आपका कुछ इंटरनेट का इशू है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सबा, सबा, टाइटल है फिर अपना लो मुझे। सबा मेरी सबा आप एक मिनट सुनिए। आपका जो नेटवर्क है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वीक है। आप ऐसे करिए, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से किसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे जाइए सो वी कैन हियर यू। अभी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, आप दोबारा ओके, कनेक्ट कीजिए किसी मैं और डिस्कनेक्ट करके। जी। ओके, श्योर।
Okay. अनामिका जी, we'll come back to you. जी Right, come. Yeah, जी I'll be a good stopgap. जी, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे कवि आए हैं आज माजा उसके मेंबर्स, आपको उनकी कविताएं रचनाएं अच्छी लगी। बहुत अच्छी, सब में एक अलग आग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी, शुक्रिया। चमक साहब, you ask this next question. नहीं, मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास तो एक पंजाब से भेजी हुई जप्पी है जो मैं चाहता हूँ कि अनामिका जी उसको महसूस करें और उस जप्पी का आनंद हम सब लें, और आप अपनी कोई ऐसी रचना हमारे साथ शेयर करें। एक तो जो आपने रचना जो अभी आपने पहले शेयर की जिसमें झाड़ू भी था, कैंची भी थी और सुई धागा भी था, वो अपने सर के ऊपर वो टोकरी में सब कुछ वो संजो के वो ऐसा कुछ आपसे बात करते करते एक मेरी पुरानी रचना वो भी मुझे सामने याद आई, लेकिन वो बाकी सब पहले हों फिर बाद में करेंगे उसमें। और आप अपनी कोई रचना हमें पहले और सुनाएं, और फिर बख्शी साहब भी अभी हमारे पास आ चुके हैं, इनके बाद फिर हम इस रचना के बाद बख्शी साहब को भी आगे। जी एक मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा अनामिका जी। आपका जैसे सबने झाड़ू और उसकी बात की, एक आपकी बटन वाली कविता भी है। जी जी तो वो जी, भी जी, अगर जी। आप सुनाएं अभी या बाद में, तो वी वुड रियली लाइक टू हियर दैट आल्सो। ठीक है, मैं बटन वाली सुना देती हूँ, अगर मुझे मिल गई तो। हाँ जी, मिल गई। मेरा भाई मुझे समझा कर कहता था, जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन रात के अंगरखे में टके हुए। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, क्योंकि चुट से केवल एक बार पुट बचकर एक दूसरे में समा जाते थे। वे तभी तक होते थे काम के जब तक उनका साथी चारों खूंचों से बराबर उनके बिल्कुल सामने रहे टका हुआ। ऊंच नीच के दर्शन में उनका कोई विश्वास नहीं था। बराबरी के वे कायल थे, फंसते थे न फंसाते थे, चुपचाप सट जाते थे। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, लेकिन मेरी तरफ के लोग खुद भी थे चुटपुटिया बटन की तरह चुट से पुट बजकर सट जाने वाले। क्या बात है। वाह। इस शहर में लेकिन चुटपुटिया नजर ही नहीं आते। सतपुतिया झिगुनी की तरह यहाँ एक सिरे से गायब है चुटपुटिया जन और बटन। ब्लाउज में भी दर्जी देता है टांक यहाँ हुक ही हुक। हर हुक के आगे विराजमान होता है फंदा। फंदे में फंसे हुए आपस में कितना सटेंगे, कितना भी कीजिए जतन, चुट से पुट नहीं ही बजेंगे। ये जो मैं पहली बार दिल्ली आई थी तब का पढ़ने आई थी तब की है। ये बात आपकी पहले भी हमने तब भी इतना ही वो था, उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ा था। डॉक्टर साहब, आपकी फरमाइश बहुत अच्छी थी डॉक्टर बहल। थैंक यू, थैंक यू। आपने डॉक्टर साहब, आपने अनामिका जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उच्चतम विद्या हासिल की, फिर आपने ये हिंदी माध्यम चुना अपनी बात कहने के लिए, इसकी खास वजह? हाँ, अपनी मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको माएं दूध पिला देती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फेड होते हैं। अब इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। जिनकी मादरी जबान ने उनको दूध पिला दिया है, उनकी रेशियल मेमोरी से उनका गहरा नाता बन जाता है। उनको वही अपनी खेल का लैंग्वेज, लोरियों का लैंग्वेज लगता है, वो उसके साथ खेल सकते हैं। क्या बात। और जो ब्रेस्ट फेड होते हैं मदर मतलब दूसरे लैंग्वेजेस से, वो भी कोई बुरे नहीं, उनके साथ भी कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो मतलब वो बात उनके चॉइस की होती। मुझे लगता था मेरे इन्वायरमेंट की भाषा हिंदी है, मैं जिन लोगों से गपशप कर सकती हूँ दिल खोल कर, वो हिंदी में बोलते हैं। मैं अंग्रेजी तो सिर्फ
क्लास में बोलती हूँ, या जब मुझे कोई प्रेजेंटेशन एकेडमिक करनी होती है तो मैं बोलती हूँ। मेरे लिए ट्रांसलेशन का एक सेतु भाषा है वो, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट की भाषा नहीं है। मेरे दिल में जो न्यूएंसेस होते हैं भाषा के, वो हिंदी में जैसे सभी भारतीय भाषाओं में 4 रजिस्टर्स होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें विदेशज भी शामिल है, देशज भी शामिल है, तद्भव भी शामिल है, और संस्कृत और फारसी ओरिजिन के भी जो अपशब्द है वो भी शामिल है। तो इसका रजिस्टर जो चारों मिला के बनता है, वो मेरे लिए एक प्ले फील्ड जैसा हो जाता है, और मुझे लगता है कि ज्यादा मैं सहज होती हूँ। इसलिए मैंने वो एकेडमिक रिगर की भाषा हो गई अंग्रेजी, लेकिन जब मुझे खुल के कहना होता है तो मुझे मादरी जबान ज्यादा फूटती है उसमें कविता। क्या बात, क्या बात। जी, इसी उसमें माँ विचार के को दूध आगे- का रस होता है। बहुत 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 गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। वाह। जी, इसी विचार को आगे अगर बढ़ाएं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नामिका जी कि आप कविता तो हिंदी में रचती हैं, पर आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जो आप आलोचना करती हैं, आलोचक भी हैं आप, तो वो आप अंग्रेजी में करती हैं। तो आप जी, अंग्रेजी में भी लिखती हैं कुछ? मैंने शुरुआत तो स्कूल मैगजीन में तो अंग्रेजी की कविताओं से की थी, जी, लेकिन बाद में पढ़ाते हुए तो अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में ये है कि वो बहुत, उस समय जब हम छोटे थे तो अंग्रेजी ही वर्ल्ड लिटरेचर तक जाने का एक माध्यम थी। अब तो हमारी सभी भारतीय भाषाओं में अपनी चीजें आ गई। अंग्रेजी विश्व साहित्य की पोलिश पोइट्री, चाहे जर्मन जी, पोइट्री, सब आ गई है। हिंदी में भी, पंजाबी में भी। पंजाबी तो बहुत ही थियरीज भी ले आया है हिंदी में। हिंदी भी मतलब बहुत वेस्टर्न थियरी, एक क्रॉस वेंटिलेशन सा होना चाहिए। हम एक पोरस बाउंड्रीज वाली दुनिया में रह रहे हैं। हमें ना चारों तरफ खिड़कियां तो खोलनी पड़ती है। तो अंग्रेजी जो है, वो जैसे पहले नाटकों में सूत्रधार होते थे, जी, वैसे सूत्रधार भाषा तो अंग्रेजी है। तो हमें उससे वर्ल्ड लिटरेचर की आहटें अपने यहाँ मतलब एक तरह से इंटरटेक्सचुअल डायलॉग करते हुए ले आनी चाहिए। जैसे नदियां ही हैं, आपकी पंजाब की नदियां, तो जी, उसमें लोकल हर्ब्स की भी खुशबू होती है ना। तो इसी जी, तरह अपनी भाषाओं में लोकल हर्ब्स भी हों, और बाहर के जो करेंट्स और क्रॉस करेंट्स आते हैं वो भी हो, तभी हमारा काम चल सकता है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ऊंच नीच नहीं हो, तो हमारा वेस्ट और ईस्ट के बीच में भी जो उनकी थ्योरी का पक्ष है, और जो हमारे अनुभव का पक्ष है, और जो हमारे संस्कृत क्लासिक्स में या फिर हमारे पर दूसरी भाषाओं के जो पुराने ग्रंथ हैं, उससे हमने जो रस और ध्वनि का सिद्धांत सीखा है, और बाहर की दुनिया से जो फेल्ट थॉट और ऑब्जेक्टिव रियल कोरिलेटिव का सिद्धांत सीखा है, हम तो उनको भी सखियों की तरह गले मिला देना चाहते हैं। क्योंकि नॉलेज ने तो, जैसे ओड टू वेस्ट विंड है जी, शैली की, उस तरह जी, से कोई वेस्ट विंड भी आए तो पुरवैया का झोंका बन के हमारी तरफ रह जाए, और पुरवैया का भी कोई झोंका उठता है तो वेस्ट तक जाए। हम जी, तो ऐसी ही आवाजाही चाहते हैं, क्या बात। इसलिए। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरी की अच्छा, पूरी कन्वर्सेशन ही पोएटिक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कविताएँ भी लिखती हैं, आप उपन्यास भी लिखती हैं और आप आलोचक भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं आप। तो इन चारों माध्यमों के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए होता है, वो सबके लिए अलग होता है। उपन्यास के लिए कुछ और तरह का चाहिए, कविता के लिए कुछ और तरह का चाहिए। तो आप ये माइंडसेट कैसे एस्टैब्लिश करती हैं? हाउ डू यू हम अप्रोच अ सबके भीतर तो कई मैं होते हैं। हम जो एक आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड आजकल अपने पॉकेट में रख के चलते हैं, सिर्फ वही तो हमारी आइडेंटिटी नहीं है ना। जी, हमारे भीतर तो कितनी आइडेंटिटीज हैं जो म्यूजिकल चेयर खेलती रहती हैं, अगर आपने वो खेल खेला हो बचपन में जी, जी, तो। बिल्कुल, बिल्कुल खेला है। तो कभी कोई आइडेंटिटी, कभी कोई आइडेंटिटी हमारी ये सामने आ जाती है, कुर्सी पकड़ के बैठ जाती है। तो हम तो खेलने वाले। एक हमारी बहुत पुराने कवि हुए हैं, उनके उनकी एक लाइन है बहुत अच्छी कि विधि के बनाए जीव, देव नाम था उनका, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत उन्हें खेरन फिरन देव। तो हमारे यहाँ एक ऐसी, मतलब जहां भी जो भी उभर रहा है
वो अगर उभर रहा है तो हमारा जो पूरा बॉडी है, या बॉडी पॉलिटिक हो या पुरुष सूक्त या नानक यहाँ भी पूरा पुरुष जो हमारा है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है ना हमारे, कभी या चक्र, जैसे हमारे पुराने दर्शन में हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, अलग अलग चक्रों पे हमारे एनर्जी बताए गए हैं। तो सहस्रार से लेके मूलाधार तक कितने एनर्जी सेंटर्स हैं, कभी कोई एक्टिवेट होता है, कभी कोई एक्टिवेट होता है, प्रोलिफरेशन होता रहता है किसी का। तो नेचुरली वो कभी कुछ खिल गया, कभी कुछ खिल गया, तो इसमें आदमी का अपना बस नहीं होता, वो खुद ब खुद हो जाता है। बस आदमी को नेचर के आगे अपना अहंकार का घड़ा फोड़ देना पड़ता है। जैसे कबीर कहते थे, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। यह अहंकार का घड़ा फोड़ दो तो बूंद समुद्र में मिल जाएगी। तो अगर अपने को जीरो कर दो, जिसको कीट्स भी कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो अगर वो पैदा कर लो तो सभी लोग आके आपके भीतर रहने लगेंगे। आपके भीतर एक गांव बस जाएगा पूरे किरदारों का, पूरे सारे से। वो कभी कुछ बोलेगा, कोई कभी कुछ बोलेगा, तो वो आदमी के भीतर बस खुला एक खिड़कियां खोल देना चाहिए, दरवाजा खोल देना चाहिए। जैसे आपके पंजाब में भी और हमारी तरफ भी हमेशा ही दरवाजा खुला रहता था, एक खाट बाहर पड़ी रहती थी, कोई आके बैठ जाए। तो कभी कोई बैठ गया अपने भीतर, कभी कोई आके वहां बैठ गया और वहीं से गपशप शुरू हो गई। बात तो गपशप करने की है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे रमन, जहाँ दिल की बात कहने का अवसर होता है, कभी किसी रोल में, कभी किसी रोल में। तो उस तरह से एक अवसर ढूंढने की बातें थी। रोल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे अनुभव है वो इम्पोर्टेंट है। जी, आप कर दिया गुरप्रताप? जी जी बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नामिका जी की एक और पोएम पढ़ें आप। ये आप पंजाब से है ना, तो आप पंजाब की धरती मुझे बहुत मुतासिर करती है। तो खासकर उसका सूफियानापन और उसका नानक देव जी का जो दर्शन है वो, तो एक सच्ची घटना पे आधारित ये पोएम है। एक हमारे यहाँ की फकीर थी, हमारे मतलब उनका कोई ना था, और वो बगल के घर में रहती थी। मेरा बहुत मन करता था उनसे गपशप करूं, लेकिन वो इतनी खामोश रहती थी। और हम सबके अनुभव में ऐसे लोग होंगे, ऐसी अकेली वृद्धाएं होंगी जिनको देख के मन करता है वो खुले, और वो खुलती नहीं है। उनके भीतर कुछ ऐसा होता है जमा हुआ, वो अपने संधान में अकेले चलती चली जाती है, राबिया फकीर की तरह। तो वैसी एक थी, उनको ये मैंने रिलेट की है कविता। मेरे मोहल्ले की राबिया फकीर, इतने बरस मैंने कोशिश की वह मुझसे दोस्ती करे, पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। अक्सर ही हंसकर निकल जाती वो सामने से, लेकिन जाने क्या हुआ उस दिन, कंधे पकड़कर बिठाया और कहने लगी, इश्क मुझे थमा गया, अच्छा ईयरफोन। धरती की छाती पर कान लगाकर सुनो, और हवा के, पानी के, आग के अस्फुट बोलों पर ध्यान लगाकर सुनो। सृष्टि की ऐसी अंतर्ध्वनियां जो पहले सुनी नहीं थी, किसी और देश काल से छनकर आई वृद्धा वेश्याओं की फीकी हंसी। दुनिया के सबसे बड़े पागल खाने के किसी पुरातन पागल के एक तारे की जय जयवंती। किए अनकिए सारे अपराधों की लय पर झन 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 जंजीरें बजा रहे कैदी की अचानक जगी कुकुर खांसी। सारे नियमों की उलट बांसी कुदरत के पोर पोर से झनझनाती सुनाई पड़ी। इश्क मुझे थमा गया, अच्छा ईयरफोन। सुनी गौर से मैंने गुम आहटें मृत प्राय भाषाओं की, जिनका कि एक भी अक्षर पढ़ता नहीं पल्ले, फिर भी जिनमें होती है कुव्वत पानी के भीतर बसे अपने मायावी नागलोक तक खींच लेने की।
तिनकों का कोई सहारा लिए बिना डूबे संदर्भ बन जाते हैं नागमणियां यही। रात के कलेजे में थर 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 कांपती दुआएं सुनी, रक्षा स्तोत्र सुने, माओ के सूखते हलक से उठे थे जो एक साथ, और गिरे थे आसमानों से टकरा कर टप 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 ओस की तरह धूप की नोक पर। गौर से सुनी मैंने कनबत्तियां बिके हुए खेतों की बाड़े की भटकोइयों से। पूरी यह कायनात झमझम झमाझम बरस रही थी इस आईने के भीतर। झूम रहे थे वे 49 पवन, ठनक रही थी कुंडियां मेरी, चरमरा रहे थे दरवाजे जन्मों से जकड़े हुए। दौड़ी इधर दौड़ी और उधर दौड़ी, धड़ धड़ धड़ाम खुल गई खिड़कियां। उन्हें बंद करने के चक्कर में पोर पोर भीग गया, खुला और बिखर गया जूड़ा। सृष्टि में सांझ घिर गई, धक से तब खुला यह रहस्य, बादलों की फाक से कौंधा। एक के बहाने सारी दुनिया अपनी अपनी सी लगे, तभी समझो कि जाना किसी को। इश्क एक उत्तप्त सी छलांग है, पहले अपने बाहर फिर अपने भीतर। देर तलक हिलता है जिससे तालाब का पानी, किसी को जानना तालाब, दरिया, समुंदर और बारिश हो जाना है। जानना जाना है। एक बार बरसते हैं बादल, पेड़ 3 बार बरसते हैं। हर बारिश के बाद पेड़ों की डालियां हिलाते हुए सोचते थे हम, किसी को जानना सब भूली बिसरी बातों का धीरे धीरे याद आ जाना है। जानना हो जाना है बूंद बूंद लोकती हुई पत्ती। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे गौर से देखा, फिर खुद पर नजर गई। ये लो, मैं भी तो मैं नहीं रही थी, बची रह गई थी मैं एक हरी पत्ती पर भर, बारिश की बूंद बूंद लोकती सिहरती। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब, बहुत खूब। और आप मेरे ख्याल है कि आपको चैट नजर आ रही होगी जो लोग आपको भेज रहे हैं। गुरुदेव सर ने कहा है कि our tongue is not a sound, it is the I think sound of our community or something, कुछ ऐसा। Chorus of a community, what a Chorus of a beautiful, community, yes. हाँ, वो मेरे सामने से चली गई चैट। और आपकी आवाज की भी बहुत तारीफ हो रही है। बहुत सारे ऐसे आए हैं चैट में कि आपकी आवाज को सुनना ही एक कविता को सुनने की तरह है। हम लोग ऐसे ही बोलती है सभी औरतें हमारे ख्याल से। आप कभी पंजाब आके देखिए कि यहाँ पे औरतें कैसी बोलती हैं। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, मोना साथ बैठी हुई है। ओके, नम्रता है नहीं इस करके। ओके, तो आई थिंक परमजीत इज हियर विद अस नाउ। परमजीत इज हियर एंड इवन सबा हैज जॉइंड एंड अब उसका नेटवर्क भी ठीक है, तो वी कैन हैव बोथ। जी, परमजीत। Yeah, hi. Hi, Guru Pratap. Hi, everybody. Hello. Please, yeah. परमजीत, आई थिंक आपका भी नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। I think there's something wrong with the network. Yeah, I guess so. Let me try moving to another place. No, I think it's fine. No, it's fine. I think it's okay. That's Yeah. That's okay. Please, go ahead. Read. Yeah. Okay. You want me to read? I'll read 2 short poems. The first one is called Bliss Eludes. It goes like this. Please. Maybe one day when I crumble into dust, things will be different because I won't feel them. Someone may make an idol of me and break it again, and I won't feel it. I may
blow with the wind, or lie in the heart of earth and not be wet, till the eternal bliss ends, but I won't be there. That ends the first one, a short poem. And the second one is called The Red Carpet. For hours, I dreamt of honors awake, honors asleep. For years, I worked for them, but they came not. But now, I found the red carpet, rosy and easy, comfortable, the path going down. So these are the two short ones. I've got two long ones, but they will take some time. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful. Thank Thank you, you. Paramjeet. Thank you so much. Thank you, Paramjit. Thank you. Namaste. And we have Sabha with us now. Ji, Sabha ji. Yes, sir. Am I audible now? Yeah, you're good. Okay. So the title is फिर अपना लो मुझे. जी. हर कुछ पा लिया है पर तुम नहीं हो. जिंदगी ऐसे में भी गुजर ही जाती है. कभी हफ्तों भूल जाता हूँ तुम्हें. कभी किसी दिन बेइंतहा याद आती है. सब बहलाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं मैं गलत नहीं था. फिर भी मैं खुद को शर्मिंदा पाता हूँ. कभी खुद को तेरी जगह रखता हूँ, कभी तुझको मेरी जगह. फिर भी मैं उलझन सुलझा नहीं पाता हूँ. वो लम्हा भी ऐसा था, नीयत में वफाई थी, पर दिखने में तबाही थी. खुदा के कलम से लिखा वो वक्त का एक पन्ना था, जिस पर रंजिश कर सकता हूँ, मैं रूठ नहीं सकता. बचपन से पिरोया हुआ वो रिश्ता न झूठा था न कमजोर. उसे चोट लग सकती है, वो टूट नहीं सकता. आवाज देता रहता हूँ. थैंक यू मैम. आवाज देता रहता हूँ, तुम आते नहीं. छोड़कर हर गिले शिकवे कभी गले लगाते नहीं. शिकायतें कभी तो मिटेंगी, दूर मुझे तुम कर नहीं सकते. शक्ल भी मिलती है हमारी, तुम मुझे यूं भूल नहीं सकते. अरे वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये हो जाता है कभी कभी, खासकर बूढ़े कपल्स में तो हो ही जाता है. एक ही जैसी शक्ल हो जाती. बहुत है दुनिया में दिलों को मिलने से रोकने वाले, पर मुजरिम सोच है ना कि सोचने वाले. मालूम है कि वक्त सच के सिवा सब कुछ बदल देता है. कोई कभी जो हुआ करता था वो वैसा फिर नहीं रहता है. पर आसान दिल दुखाना भी है और हाथ बढ़ाना भी. देर बहुत हो रही है, थाम लो मुझे और बिखरने से पहले. फिर अपना लो मुझे जिंदगी के गुजरने से पहले. क्या बात है. थैंक यू सो मच. बहुत खूब. और अगर आप ये वाली नज्म कहीं बैड नेटवर्क में पढ़ते तो मतलब हम सब महसूस रहते. वंचित रह जाते. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. सबा, आपका भी टाइम है. आप और भी कोई नज्म पढ़ना चाहते हैं अपनी? एक और पढ़ सकती हैं आप. हाँ, जस्ट अ सेकंड. जी. तो नेक्स्ट पोएम मेरा, इट्स एन इंग्लिश पोएम एंड द टाइटल इज Writing in Hard Times. So, I held what I saw in my head to transfer it into poetry, like Wordsworth and Keats and Frost and Shelley. And like Virginia Woolf, I wished to travel from thoughts to thoughts, his thoughts, her thoughts, their thoughts, and compose a prose to connect the dots. Embracing hills too high and feeling slow, the sun dispersed its evening glow. The sun dispersed its evening glow. The air consumed the fragrance of my tea. Leaves fluttered like loyal lovers with glee. I chased after. Very good metaphor. Very good metaphor. I chased after the perfect verse to weave a story of triviality. Looking at faces, but not really looking, my mind kept playing a soliloquy. But neither rhyme nor meter my sonnet could brew. In my heavy heart, the sadness grew.
Will no words be left when I leave tomorrow? No elegy to heal a soul in times of sorrow? The mind hardly moved in the weeks of plight. I felt so much, but little could I write. When neither days nor pen could mightier be, a writer in such times, how could I be? Thank you so much, ma'am. Beautiful. Thank you so much. Thank you. It means a lot. जी Thank you so much. सभा मेरे एक कुलीग हैं, मिसेस मलिक उनका नाम है, संस्कृत के टीचर थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं, तो वो चैट में मैसेज नहीं लिख रहे थे, पर उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है कि आपकी उनकी पोएम आपको बहुत ही पसंद आई उनको। Thank you so much. Thank you so much. आपको ये मैसेज भेजा है। Means a lot. जी शुक्रिया शुक्रिया। This is the सभा। first time I'm sharing my poem in front of such a panel, so it means a lot coming in from all of you. Images are very interesting, very very interesting. interesting. आप सभा क्या करती हैं? Thank you so much. Professionally, I'm an interior designer. All right. और लिखने का शौक है। अच्छा, तो आपको शैली का, वुल्फ का, सबका मालूम है फिर आपको? हाँ, पोएट्री मुझे बहुत पसंद है, तो फिर। थैंक यू सो मच सभा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं आगे बुलाना चाहूंगा शबनम मेहरोत्रा जी को। जी शबनम जी। शबनम जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। जी जी, और बस आपको अब अपनी रचना हम सबसे। मैं सबसे पहले आप शबनम जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपने 2 चीजों से लॉगिन किया हुआ है, एक को काइंडली बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आप खुद भी नहीं सुन पाएंगे, इसको इको करेगा। आप ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सर्वप्रथम तो अनामिका जी का अभिनंदन करती हूँ। बहुत आपका भी स्वागत है, बहुत स्वागत। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे चमक जी को नमन करती हूँ और मंच पे उपस्थित सज्जनों को मैं अभिवादन करती हूँ। और बस मेरा परिचय ये है कि मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, कभी पोइट्री से वास्ता नहीं रहा। उम्र के आखिरी पड़ाव 69 की एज में मैंने एकाकीपन को हटाने के लिए कलम से यारी कर ली। और अभी इनकी किताब प्रकाशित हुई है कुछ महीने पहले, बहुत अच्छी किताब है और वो एक अच्छा, खूब अच्छा बड़ा वॉल्यूम है उसमें। थैंक यू चमक जी। मेरी 4 साझा किताबें पहले पब्लिश हुई थी, फिर एक अभी हुई है जो आपने कहा, दूसरी प्रोसेस में है जी, अमन प्रकाशन के थ्रू। अब बस मैं आप सबके लिए अब की बार कुछ अलग ही सुनाने जा रही हूँ और गुरुप्रताप जी की आज्ञा से। तो मेरी कविता का शीर्षक है क्या लिखूं। हे प्रिय बोलो, दुर्गम पथ पे कैसे अपना गीत लिखूं, अधरों पर बीते लम्हों की कैसे प्रीति प्रतीति लिखूं। जब कोई भी मीत नहीं है, सांसों में संगीत नहीं है, फिर धड़कन में किसको बोलूं, मत कर क्या नवनीत लिखूं। हे प्रिय कैसे गीत लिखूं, दहक रहे हैं दिन, सुनी रातें, सिसक रहे हैं पल आते जाते, सुबह शाम बस सुमिरन करती, क्या अपनों की रीति लिखूं। पवन हिलोरे नित भरती हैं, किंतु निराशाएं पलती हैं, तमस रहा है आज उजाले, आते यादों के रवि किरणों ने छला मुझे है, मैं बहन क्या प्रीति लिखूं। सर्पियों अंध गुफा में लाए है, पर जीवन को छलता है, अपनाए स्वप्न झील में प्रातः नयन में सजल वेदनाओं ओस बूंद में अश्रु हुए, कैसे पीड़ा पथ पर चलकर नेक नियति की नीति लिखूं,
हे प्रिय कैसे गीत लिखूं, अंतर्घट में गरल पल रहा, करता मन में गाओ हरे, पीपल की कोमल किस लय में आतप का है भाव झरे, आनंदित हो प्राण पखेरु, कैसे निरुपम प्रीति लिखूं, पड़े सुधारस के कुछ चीटे, श्रम साफल्य बने जीवन, लक्ष्य मिल सके मन चेतन में, फिर आ जाए बासंती रुत, छा जाए रंगीन फिजाएं, जो अपना मन मीत लिखूं, हे प्रिय कैसे गीत लिखूं, प्रेम गीत की प्रीति लिखूं। नमस्कार। आपका छंद बहुत सधा हुआ है। बहुत बहुत मैं ये नहीं लिखा, बस ये 3 साल हो रहे हैं, 3 साल लिखते हुए, और आप लोगों का के संपर्क में आके बहुत कुछ सीख रही हूँ। चमक जी से, माझा हाउस से तो मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है। प्रीति गिल जी बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। तो अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाती हूँ, जिसको शीर्षक है स्त्री। नहीं बनना है पुरुष मुझे, मैं स्त्री हूँ, सहृदय सहज सरल सहभागिनी, निश्चल निर्मल नाजुक नादान हूँ। नहीं बनना है कठोर मुझे, कोमल हूँ। नहीं बनना है बुद्ध मुझे, अपनों से ना बिछड़ूंगी। भाव है, भावना है, भावुक हूँ, सब पे खुशी लुटाऊंगी। अपनों की मुस्कुराहट पे खुशियां बलि चढ़ाऊंगी। नहीं बनना है पुरुष मुझे, कठोर दिल कहाँ से लाऊंगी। नहीं बनना है राम मुझे, परित्याग न कर पाऊंगी। किसी निर्दोष की अग्नि परीक्षा न ले पाऊंगी। हजारों दुख सहूंगी, छल से भी ना छोड़ पाऊंगी। अत्याचार सह लूंगी, संग रहकर मुस्काऊंगी। नहीं बनना है कृष्ण मुझे, पर पुरुष संग नाम न जोड़ूंगी। पवित्र प्रेम को न समझेगा कोई, चरित्रहीन कहलाऊंगी। न धर्मराज न खेलूं जुआ, पति परमेश्वर को न हारूंगी। कुलच्छनी न कलंकनी, मैं जीवन संगनी कहलाऊंगी। नहीं बनना है पुरुष मुझे, मैं स्त्री हूँ। नमस्कार। बहुत खूब। टाइम हो तो तीसरी भी सुना दूं? नहीं हमारे पास और हैं शबनम जी, क्योंकि हमारे पास अभी 2 पोइट्स और हैं जिन्होंने अभी पढ़ना है, और वी आर ऑलरेडी 6:25 आई थिंक। और शबनम जी मेरे को अपनी कविताएं भेजती हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मुझे तो आधी बातें इनकी समझ ही नहीं लगती, कि इनकी इतनी शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करती हैं ये, कि मैं तो मतलब शर्म से लाल ही हो जाता कि मैं क्या पढ़ूं और क्या इनको बताऊं। नहीं कहिए ऐसा, गुरु जी आत्म पे भेजी ही नहीं है। नहीं, मैं इन कविताओं को अक्सर पढ़ता हूँ और उनका जो भाव है वो आपको अंदर तक खींच लेता है। कविता में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शब्दों के इस्तेमाल के पीछे भी एक सोल होती है। मुझे लगता है कि वो सहजता से आपके अंदर वो पहुंच जाती है, जो वो कहना चाहती हैं वो बिना शब्दों के भी आप तक पहुंच पाता है। आप नेक्स्ट टाइम प्रयास कीजिएगा तो आप समझ पाएंगे, आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया शबनम जी, शुक्रिया। हमारे पास अभी 2 कवि और हैं जिन्होंने अभी पढ़नी है अपनी रचनाएं। मैं बुलाना चाहूंगा शैली को, शैली जग्गी, जो बीबी के डीएवी में हिंदी की प्रोफेसर हैं अमृतसर में। शैली, आप हो यहाँ पे? जी जी, she was here. Let me just check now. जी जी, शैली जी is here. शैली जी, please unmute yourself. मैं यहाँ हूँ। जी जी, मुझे मालूम है। सबसे पहले हूँ अनामिका जी का, और एक कॉम्प्लेक्स अनारत और सीरत का अद्भुत संगम है, और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और अंग्रेजी की अध्यापिका होते हुए भी आपने आवाम से जुड़ने के लिए हिंदी को चुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरा आभार आपका। तो मैं यहाँ अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि अगर एक रचना प्रस्तुत की तो वो अधूरी रहेगी।
तो यदि मंच मुझे आज्ञा दे। चलिए, टाइम का ख्याल रखना प्लीज। ठीक, इसलिए मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए अपनी रचना शुरू करती हूँ। तो पहली रचना है तब तलक। तब तलक रचना एक अविवाहित लड़की का प्रश्न है अपने होने वाले पति से। तो पेश करती हूँ तब तलक। तब तलक यूं ही सजाकर हर बार मुझे मेरी कठपुतली सी नुमाइश करवाओगे तुम। सजीले सपने, रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय आपने अल्प दिया है। तो सजीले सपने दिखाकर पिया घर के मुझे गुड़ियों के जैसे कब तक बहलाओगे तुम। बहू को जब दासी बना जाएगा तब क्या उस वक्त हाथ मेरा बटाओगे तुम। सुबह पहले जगकर देर रात सोऊंगी मैं, क्या आकर मेरी थकन को सहलाओगे तुम। हर एक की उम्मीद मुझसे जुड़ेगी ही, क्या मेरी कोई ख्वाहिश बन पाओगे तुम। पिता के घर जाने की मन मर्जी देकर क्या अपना सही फर्ज निभाओगे तुम। मेरे दिल में बंद चाहतों के कपाट को, मेरे दिल में बंद चाहतों के कपाट को क्या कभी खोल भीतर देख पाओगे तुम। त्याग और करुणा की सीख लेकर मुझसे, क्योंकि उम्मीद ये नारी से ही की जाती है, त्याग और करुणा की सीख लेकर मुझसे क्या मेरे दर्द में आंसू बहा पाओगे तुम। दोस्तों बीच खिलखिलाते रहने वाले मुझे देख शिकन भूल पाओगे तुम। और प्यारी बोली से जाने जाते हो बाहर, पति को कह रही है पत्नी, प्यारी बोली से जाने जाते हो बाहर क्या घर में यह भूमिका निभाओगे तुम। पत्नी अर्धांगिनी हर अर्थ में हो सनम, क्या यह धारणा नियत कर पाओगे तुम। और कहते हैं कि जब दुल्हन नई नई आती है तो उसका रूप कुछ और होता है, और फिर बच्चों को संभालते संभालते वैसी खूबसूरती भी नहीं रहती। तो तुम्हारे कुल को संभालते जो नजाकत गई, सूरत के पीछे की सीरत देख पाओगे तुम। जो अब मिलने को तरसते हो मुझसे, बाद में भी यह तड़प दिखाओगे तुम। मुझे मिलने को जो एकांत चाहते हो सदा, क्या कभी मन की वीणा छेड़ पाओगे तुम। परिणय के सातों वचन के अर्थ क्या है पिया, क्या सहर्ष सधर्म इनको निभा पाओगे तुम। अगर हाँ है तुम्हारी सोच कर वर्ण करना, कि तभी चुनना मुझे। अगर हाँ है तुम्हारी सोच कर वर्ण करना, नहीं तो एक परोपकार कर दो इस बार। नहीं तो एक परोपकार कर दो इस बार। आओ हम कर दें परस्पर अस्वीकार, ना मंजूर इनकार अस्वीकार। शुक्रिया। तो ये रचना थी एक शुक्रिया मैम। ये रचना थी एक लड़की के मन में उठते प्रश्न। और अभी इंटरनेशनल वीमेन डे के सेलिब्रेशन में कहीं जगह जाने का मौका मिला, और मैं सुन रही थी कि हर तरफ नारी विमर्श की बातें हो रही थी, और कहीं ना कहीं पुरुष जो थे वो सिमट कर रह गए थे रचनाओं में। तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे कुछ और लिखना चाहिए, और आप सभी का ध्यान चाहूंगी, डॉक्टर गुरुपेश जी, चमक जी और गुरुप्रताप जी, शायद ये रचना आपके दिल को छुएगी जरूर। और अगर किसी वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं इससे, तो मैं शुरू में ही क्षमा मांग लेती हूँ। तो ये रचना है पाती पिया की, पाती मीन्स लेटर, पाती पिया की अपनी प्रिया को। तो ध्यान चाहूंगी आपका। पति कह रहा है पत्नी से, कितनी आसानी से कह जाती हो तुम स्त्रियां, कितनी आसानी से कह जाती हो तुम स्त्रियां कि कितना कुछ सहती हो। सीमाओं में बंध जाती हो, हर रिश्ते में तुम घुलती हो, पैमाने में ढल जाती हो। कोई घाव जो पीड़ा देता है
तुम आंसुओं से रो देती। कोई घाव जो पीड़ा देता है तुम आंसुओं से रो देती हो। जी का गुबार निकाल पति पर लंबी तान कर सोती हो। कोई दिन या पर्व, कोई डे, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कोई दिन या पर्व भूल जाऊं तो तुम रौद्र रूप धर लेती हो और कहती हो मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले जैसा नहीं रहा, दिन उलाहनों से भर देती हो। लेकिन ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा क्यों हूं मैं, कहाँ इसका शोध तुम करती हो। तो यहाँ से कविता तुकांत से अतुकांत हो जाती है। कहते हैं आओ प्रिया चले तुकांत से अतुकांत पर, जो अनंत अनुभूत है वह सीमाओं में ना रह पाएगा, शायद ऐसे कहा ना जाएगा। तुम सोचती होंगी मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या ऐसा ही धरती पर आया था। इस पुरुष प्रधान समाज की धज्जियां उड़ाती मानसिकता के पीछे भी कुछ टटोला कभी। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ, जब बेटा होता है मिठाई बांटी जाती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ खुशियों की पिटारी के आवरण के नीचे कहीं बहुत कुछ पीछे रखी होती है जिम्मेदारियों की एक फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट, जहां बचपन से ही बताया जाता है कि तुम्हें ही होश संभालते सबको संभालना होगा। शिक्षा उस समय योग्यता के साथ साथ विवशता भी हो जाती है कि रोजी रोटी के लिए बेटे, पति, पिता, भाई का ही पहला फर्ज है। पत्नी, बहन, बेटी माँ को पूरक बनेंगी, लेकिन बेटा बरकत तेरी ही कमाई की होगी। और घर का मुखिया कहकर एक उत्तरदायित्व की बोरी लाद दी जाती है पीठ पर, बिना देखे कि अभी मेरे कंधे और पीठ तैयार भी हुए कि नहीं। बहन से रक्षा सूत्र यानी राखी बंधवाते हुए उसको अच्छा घर वर दिलाने का दायित्व, और एक डर हमेशा मन में रहता है कि क्या उसे कुछ अच्छा दे पाऊंगा। और नौकरी या कारोबार जमते ही मेरे लिए लड़की ढूंढने की कवायद शुरू हो जाती है। और फिर मेरी अर्धांगिनी मन में अनेकों सपने सजोए करती है प्रवेश मेरे मन के द्वार से, और जल्द ही हो जाती है मायूस कि मैं सिनेमा और कहानियों सा पति नहीं। कैसे ले आऊं झूठी मुस्कान चेहरे पर जो कंपनी के मंथली टारगेट और अधिकारियों की मियादी धमकियों संग हर पल सांसों में घुलती है। नित बढ़ती महंगाई में स्थिर वेतन के साथ घर का बजट संभालते मैं खुद भीतर लड़खड़ा जाता हूँ। इसलिए तुम्हारे मुस्कुराने पर एक अधूरी रेखा सा खींचता होठों को फिर से समेट लेता हूँ। बसंत की ओर आ रही हूँ। बाहर की समस्याएं I think we need to मैं भी ये कहने लगा था कि आपकी बहुत लंबी हो गई पोएम। ठीक है, मैं इसे ब्रीफ कर रही हूँ सर। जी बिल्कुल, इसके दो एंड पे बंद जो हो है इसकी गई। आपके स्टैंजा वो पढ़ दीजिए फिर। ठीक है। माँ बाबा को लगता है बेटा हाथ से निकल गया, क्यों नहीं याद रख पाता समाज कि घर विवाह के बाद ही क्यों बढ़ता है। किसी घर की बेटी पत्नी और बहू बनकर क्यों अलगाव और बंटवारे पर उतर आती है। बेटों को संस्कार और नारी सम्मान की सीख बचपन से दो के जुमले और विचार रखने वाले बेटियों को बहु बेटियां बनना भी सिखाएं जरूर। और हो गया, क्या बात, बहुत अच्छे शैली जी, बहुत बस अंतिम अगर बस लास्ट में आ रही हूँ, क्षमा भी चाहती हूँ, और कुछ भूलने से तुम्हारे और परिवार के प्रति मेरा लगाव नहीं कम हो जाता, क्योंकि जानता हूँ कि तुम हो ना मेरे मकान को घर बनाने वाली, मेरी बेफिक्री को तरतीब देने वाली, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखने वाली, और मेरे
बिखराव को हमेशा सलीके से सजाने वाली। आज इतना ही, शेष फिर तुम्हारा। और क्षमा भी चाहती हूँ क्योंकि प्रोफेसर को आदत होती है थोड़ा अपना लेक्चर लंबा करने की, तो आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और मैं दावत दूंगा संजय हजारिका जी को, वो हमारे साथ है और उनको बहुत जल्दी जाना है, और फिर अनामिका जी को भी जाना है। तो हम चाहते हैं कि हम पूरे प्रोग्राम को सबके सामने इनके साथ रखें। और मैं संजय जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आए और हमारे साथ अपनी दिल की बात अपनी कलम की जुबानी कहें। Hi, Chamakji. Good evening, Anamika ji, and congratulations on your award. Good evening. Good evening. Rekha Sethi's long article and scroll about you today. Thank you. And I am not a Hindi speaker much. I read even less. So some of the things that are recited today have gone over my head, but I know that there are many who value and appreciate them. And I'm not a poet, I'm a writer, but I'm not a poet. So I write poetry occasionally, and I will read to you from a book that I wrote on the Northeast. It's called Strangers No More. It's my latest one. It's about 3 years old now, 2.5 years old. I wrote, I was driving from Bagdogra Airport to Gangtok, and I wrote a short poem on my mobile as I was traveling on that bumpy road in a very wet July. And this came after the collapse of the dam, the earthquake in 2016 or so in Sikkim. And I think it's relevant in the wake of the disaster that has taken place in Uttarakhand, which has vanished from the headlines, but which should be embedded in our minds and hearts, because if we treat nature with cruelty, it will not spare us. The Teesta is dead, killed with rocks and dynamite, killed by cement and brick. The winds howl no more, thundering down its valley. Instead, a simpering, sad whisper touches a leaf or two of the dusty, dried up trees lining the hills, looking down in tired despair. Will you even raise your arms, my friends, and wave the flags of protest? The Teesta's death won't make it to the front pages or dear Arnab's news hour, because it's only a river after all, and a river has no voice. But do you? Let's remember September 2011 here, my friends. The earth shrugged, hills collapsed, houses fell, trees crashed, roads broke, the earth split, people died. So maybe you won't need to take to arms or raise them, for all it needs is for the earth to shrug once more. Thank you. Very nice. Very nice. Very nice, Sanjay. Very nice. Always very meaningful. अनामिका जी, संजॉय हमारे आज के लास्ट रीडर्स थे। हमारे वर्किंग कमेटी के भी कुछ मेंबर्स पढ़ना चाहते थे, पर टाइम भी हमारा पूरा हो रहा है। हमने आपसे भी पूरी बात भी नहीं की, तो वापस आप ही के पास आते हैं। जी एक मिनट, चमक साहब, will you answer this question? I have to see something. Yeah, please, don't worry. मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था कि मेरा आपसे क्वेश्चन कोई नहीं है, क्योंकि आपकी बातें मुझे एक किसी दूसरे ब्रह्मांड में ले जाती हैं, किसी और कनेक्शन के साथ जोड़ देती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हालात अच्छे होते हैं, और प्रीति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो शायद 1-2 दिन में अमृतसर आ रही हैं, तो प्रीति जी इनको साथ ले आइए। हम एक गोष्ठी इनके साथ यहाँ पे अमृतसर के माजा हाउस में इनके साथ बैठ के करें, और इनकी वाणी को जैसे सब हम वर्चुअली सुन रहे हैं, तो इनको अगर सामने सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अनामिका जी, जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ इनकाउंटर, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारी लाइफ में बचपन से लेके जिस उम्र में आज हम हैं, तो आपको
आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो आपकी किसी रचना में आपने उसको लाने की प्रयास किया किसी जगह पे कि मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स का या उस सोच का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, और जो हम हसास लोग हैं, जो हम महसूस करते हैं चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ल, जैसे आपने कहा कि वो कभी हमें से कोई चटाई पे आके बैठ जाता है, कभी कोई आके बैठ जाता है, तो इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी किसी रचना में जो आज का जो माहौल है पूरी दुनिया में, एक जो अप्रोच ही कंप्लीटली डिफर कर गई है, तो वो आपके साथ ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग है ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रक्स है हमारी प्रॉब्लम का, कि जो हमारे जैसा नहीं, हम खुद को स्टैंडर्ड मान के बैठते, और जो हमारे जैसा नहीं है उससे हम डायलॉग नहीं करते। हमारे बाजार ने हमारी हाइपर मैस्कुलिनिटी को बढ़ा दिया है, हाइपर फेमिनिटी को भी बढ़ा दिया। हम एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें ना कोई मैचो मैन होता, ना कोई बार्बी डॉल होता, और सब में डायलॉग का हार्मनी। देखिए, एथिक्स का भी जो की कॉन्सेप्ट है वो हार्मनी है, और एस्थेटिक्स का भी जो की का कॉन्सेप्ट है वो हार्मनी है। एक्सेसेस जहां होंगे ना, वहां पे एस्थेटिकली भी वो फ्रस्ट्रेटिंग होगा और एथिकली भी वो फ्रस्ट्रेटिंग होगा। वायलेंस फॉर इंस्टेंस, वो एस्थेटिकली भी फ्रस्ट्रेटिंग है, एस्थेटिकली भी और एथिकली भी फ्रस्ट्रेटिंग है। और हम जो लायन शेयर ग्रैब करना चाहते हैं, सबके ऊपर हावी हो जाना चाहते हैं, और दूसरे को साइलेंस कर, कोऑपरेशन, जो अंग्रेजी का एक शब्द मुहावरा बहुत चल गया है, कट थ्रोट कंपटीशन। आप देखिए कितना वायलेंट है ये कंपटीशन ऑफ द कट थ्रोट। हमने हिंदी में उसका फिर भी एक थोड़ा मुलायम अनुवाद किया है, गिरह कट सफलता। लेकिन हमको घुड़दौड़ का घोड़ा नहीं बनना, और हमें कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव समाज बनाना है। कोऑपरेशन शुड बी द कीवर्ड। और हम सब ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां पे हमारी उपस्थिति, हर आदमी किसी न किसी तरह से खास होता है। तो आदमियत का ये दावा है कि जो उसमें खास है उसको सामने वाला उसको खिलाने का मौका दे। और जो जैसे कहते हैं कि हर फोटोग्राफर जानते हैं कि हर चेहरा किसी न किसी एंगल से सुंदर होता है, तो उस एंगल को कैप्चर करें। और ये सब एक डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के साथ ये बात आया हो गई है कि ये सिर्फ डायलॉग से ही हो सकता है। तो हमने जो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग के खिलाफ लोग, एक साजिश हो रही है दुनिया भर में चुप कराने की साजिश, उस पर एक कविता लिखी थी तलाशी, मैं उसी को अंत में पढ़ देती हूँ। तलाशी, ये जो उन्होंने कहा हैंड्स अप, एक एक अंग फोड़कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। मेरी तलाशी में क्या मिला उन्हें? थोड़े से सपने मिले और चांद मिला, सिगरेट की पन्नी भर, माचिस भर उम्मीद, एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी एक अभेद्य लिपि में अपनी धरती को। हेलो धरती, कहीं चलो धरती, कोल्हू का बैल बने गोल गोल घूमे हम कब तक। आओ कहीं आज छूटते हैं तिरछा, एक अगिन बान बनकर इस ग्रहपथ से दूर। उन्होंने चिट्ठी मरोड़ी और मुझे कोच दिया काल कोठरी में। अपनी कलम से मैं लगातार खोद रही हूं तब से काल कोठरी में सुरंग। कान लगाकर सुनो, धरती की छाती में क्या बज रहा है। क्या कोई छुपा हुआ सोता है? और उधर पार सुरंग के वहां दिख रही है कि नहीं दिखती एक पतली रोशनी? और खुला खिला मैदान घास का कैसी खुशनुमा कनकनी है।
हो सकता है एक लोकगीत गुजरा हो कल रात इस राह से, नन्हे नन्हे पांव उड़ते हुए से गए हैं ओस नहाई घास पर। फिलहाल बस एक परछाई ओस के होठों पर थरथराती सी बची है। पहला एहसास किसी सृष्टि का देखो तो टप टप टपकता है कैसे। क्या बात है, बहुत खूब। पता नहीं मैं आज इस पोएट्री सेशन में कितनी बार रोया हूँ, बहुत अंदर तक, बहुत बहुत उम्दा। गुरप्रीत, आपके पास एक क्वेश्चन था, वो शायद उस वक्त कहीं और मसरूफ है तो उन्होंने मुझे इसकी ड्यूटी दी। तो गुरप्रीत आप जी। I think अनामिका जी को भी जाना है. I think she has another program. Yeah. After this, and I was actually going to request Jasmeet to come and do the conclusion. I know कि उनके पास भी कुछ पंक्तियां थी, वो पढ़ना चाह रही थी. If she can include that in the conclusion, very good. Let's call Jasmeet if she's here. मैंने ग्रुप में मैसेज डाला तो है, पर उनका अभी कोई जवाब आया नहीं। She's here. I'm there. Ji, come on, Jasmeet. If you can also add those few lines into your conclusion and say thank yous to Anamika for being with us this evening. और थैंक यू प्रीति। अनामिका, इतना आनंद आया आपको सुन के, जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं कहीं ज्यादा। और वो जो आप लेके आ रही है ना बड़े बड़े से इनाम, उससे तो आपका ऑरा और बढ़ गया है। नहीं नहीं, हम तो साथ हैं, बस इतना ही छोटा सा लेकिन आपका कंटेंट सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी गुंजाइश बाकी है, आपको माझा हाउस तो आना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से हमारे जो फ्रेश फेसेस और बहुत से हमारे पुराने फेसेस आज जो हमारे सामने आए हैं अपनी अपनी रचनाएं लेके, they were beautifully presented. और मैं देख रही हूँ रूबल तुली तो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं अपना, और you read beautifully. And Shelly Jaggi was there, and वो हमारी कहाँ गई शबनम, yeah, and Saba, and did I forget anybody? मेरे को बता दीजिए। हरसिमरन जी थे, संजय था, परमजीत बख्शी था। जी जी जी। डॉक्टर सरबजोत बहल थे सबसे पहले जी। तो बहुत मजा आया और हिला नहीं गया एक्चुअली, हम वी आर ग्लूड एंड आई विश देयर वाज मोर टाइम। बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा, और जो नए मेंबर्स हमारे साथ आए हैं जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम। ये जो हमारी मैजिक वुमन है ना प्रीति, ये बहुत कुछ करती हैं, और उनके साथ हमारे जो यंग क्रूसेडर्स है वो भी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ, लेकिन जुड़े रहिएगा। आप तो लगी हैं। आप अपनी लाइनें तो सुना दीजिए जो सुनाना चाहती थी, हम वो सुन के चाहते हैं। पंजाबी में पढ़ने लगी हूँ जी, जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। बात हो रही है उस कवि की जो जंगल में चला जाता है और बहुत से फूल उसे नजर आ जाते हैं। अब कलियां खिली हुई हैं जंगल में, और वो क्या करता है कि कलियों से बातें करता है। He's talking to the flowers in the jungle. मधुबन विचों लंघदी ਜਾਂਦੀ ਸੀ, मधुबन विचों लंघदी ਜਾਂਦੀ ਸੀ, फुल्लां ने मैं मचला दित्ती। मैं भुल गई ते अनजाने ही फुल्लां नाल न्यो रसा बैठी। क्या बात। Fell in love with the flower. अब बात हो रही है कलियों से। नी कलियो, हाँ भाई बेलिया, नी कलियो मैके मखणो कदे छो छुआओ, नी कलियो मैके मखणो कदे छो छुआओ, ना भाई बेलिया। कलियां जवाब दे रही हैं, ना भाई बेलिया, तू पट हंडावे, तू पर पर उंजला अपनी सेज सजावे। नी कलियो निम्मो चूणियो कदे, नी कलियो निम्मो चूणियो कदे झात ते पावो, नी कलियो निम्मो चूणियो कदे झात ते पावो, ना बई बेलिया, ना बई बेलिया, तू भुल जावे अखियां लाइयां
तू सानू विसरावे ना बई बेलिया निकलियो रुड़ जानियो निकलियो रुड़ जानियो कदे खिड़खिड़ हसो ना बई बेलिया तू कहर कमावे मैं हंसा फुल बन जावा तू तोड़ ले जावे क्या बात, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। निकलियो रुड़ जानियो कदे खिड़खिड़ हसो ना बई बेलिया तू कहर कमावे मैं हंसा फुल बन जावा तू तोड़ ले जावे निकलियो रंग बिरंगियो कदे रंग विच रसो निकलियो रंग बिरंगियो कदे रंग विच रसो ना बई बेलिया तू गंध रचावे खुशबू तू गंध रचावे सानू पठ विच पावे मिठी महक चुरावे क्या बात है, क्या बात, क्या बात। निकलियो बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू स्मित जी। Thank you very much, Anamika. आपने काफी टाइम निकाला हमारे लिए and patiently listened to everybody. नहीं इतना बढ़िया लग रहा था मुझे तो। नहीं बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे actually we are all sitting together and it's like a physical thing which is happening rather than online. जी यही तो कमाल है, मजा है उसका। हाँ, नहीं आपने इतनी अच्छी बातें बताई plus you know a little bit of your own journey and I agree with the people who are writing in the chat box about your imagery because what you speak is poetry. Forget about what you're writing as poetry. So thank you very much for being here with us today. Thank you, Anamika ji, and thank you. Shukriya, Anamika. Bye. Wish Have you a good time. Thank to you. be here in Amritsar. Let's sail together, all of us. Thank you. Thank you. God bless. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। Good night. Thank you.